only for scrutiny process, and then after scrutinized by the CBSE officials, if you find the correct, then you can only proceed, otherwise your application will be rejected. So for that, you need some documents process including the infrastructure and human resources. So three things are there for getting any school, either for the secondary and senior secondary. First is the infrastructure, second is the human resources, and third is the documentation process. What are the documents you need to fulfill to get the affiliation? Next. So these are the points for evaluation of school affiliation. The first part is the mandatory compliance, and before applying you need to have on your own school website. On that website you need to link your all the necessary documents on the portal before applying for the scrutiny process, either the land certificate, the RD certificate, mandatory public disclosure now is there in land, building safety, health and hygiene, fire, and your trust, including RT paper for grade 8. So in documentation, the first part is the recognition under RTE Act. You must have to put up the RTE certificate for grade 1 to 8, and it is issued by the DEU, District Education Officer, for your particular district. And then there is a NOC by the State Education Department. Earlier, NOC was issued by the Secretariat, but now the process is changed. You have to apply for the NOC in your district, and some other officials like SDM or DO or DPU, they will depute to investigate your institute, and after having submission the report to the Secretariat, then you can get NOC certificate from the Secretariat. That is the purpose. That is the thing, new thing is checked right now in this year also. Then you will put the recognition certificate of society. Okay, tell me what difference. What is the difference between society and trust? You must have the society or trust or any company act to establish your school to get your school affiliation. So tell me the difference that what is the difference between society and trust? Anybody? What is the basic difference? Yes? Anybody? Society is made by the It's society is made by some people, okay. not related to each other. And trust is created by the family or some eminent person's name. Any more answers? प्लीज थोड़ा सा आप लोग इंटरैक्ट होइए, आप लोग बोले नहीं रहे, कैसे काम चलेगा? प्लीज कैरी ऑन, कुछ तो बोलिए। सोसाइटी और ट्रस्ट, सभी लोग मोस्टली इसमें कुछ स्कूल प्रिंसिपल भी हैं, आप लोग एप्लीकेशन करवाए होंगे। हम बिना माइक ही बोलते हैं, सब लोग दिक्कत हो रही है, ठीक हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? सो ट्रस्ट और सोसाइटी, मैंने पूछा कि ट्रस्ट और सोसाइटी में क्या अंतर है? कोई डिफरेंस बताइए, बेसिक डिफरेंस। अच्छा, अगर हमको एफिलिएशन लेना हो तो ट्रस्ट अच्छा रहेगा कि सोसाइटी अच्छा रहेगा? ट्रस्ट क्यों अच्छा रहेगा? सोसाइटी के पास ज्यादा होते हैं। एनी मोर आंसर सर? सोसाइटी में वर्किंग ब्रांचेस बहुत ज्यादा होते हैं। My view, trust is something legal and financial organization that pertains to, and society is a social construct. Any more points? Yes, very good answer. Any more points? Like one example is home society, when many people together living in one apartment, they form a society. It is a social construct. So the area of society is lesser than trust. सोसाइटी जो बनती है वो कुछ लोगों के द्वारा बनाई होती है, जिसका एरिया होता है कम होता है, लेकिन ट्रस्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो ब्रॉड लेवल पे होता है। यू कैन एस्टैब्लिश द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एंड अदर पार्ट आल्सो, बट इफ यू हैव द सोसाइटी you are not allowed to have the maximum number of organizations for society. That is the basic difference between trust and society, and that's why we prefer the trust
to get school affiliation. We can have other modes in the form of the medical colleges, other institutes. So many things you can establish under the trust. That is the basic difference. Now, what is Company Act? Can we have the affiliation with Company Act? कंपनी एक्ट के बारे में पता है आप लोगों को? यस। 1952 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसके तहत सारे मेमोरेंडम मेंटेन करना होगा तब जाके कंपनी रजिस्टर। ओके, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसके तहत कंपनी एक्ट में कोई स्कूल का एफिलिएशन हुआ हो या अभी अंडर रनिंग में हो कोई स्कूल जो कंपनी एक्ट में चल रहा हो? कोई भी? कौन सा? BPS। और कोई? DAV model school है sir। No, DAV also that is the managing committee. That is not the Company Act. Any more answers? Those schools who are under Company Act. कंपनी आपके साथ कोई स्कूल नहीं चलता है सर बिल्कुल चलता है सर। कंपनी एक्ट में है एक ही स्कूल है इंडिया में जो कंपनी एक्ट में। टाटा स्कूल पोद्दार ग्रुप जो है वो उनका अपना कंपनी एक्ट है, उसके थ्रू उनका स्कूल चलता है। बहुत रेयर है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो स्कूल कंसर्न वो ट्रस्ट के अंदर। ठीक है, तो हमें जब एफिलिएशन, सपोज दैट आप में से बहुत लोग प्रिंसिपल हैं और कुछ प्रिंसिपल नहीं है जो एजुकेटर्स हैं, भविष्य में कई मन किया कि भाई मैं भी अपना स्कूल खोल दूँ। तो स्कूल खोलने के बाद तो एफिलिएशन की जरूरत पड़ेगी ना, तो कॉलेज तैयार है कि हमें एफिलिएशन के लिए क्या क्या करना हो। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो है मैंडेटरी कंप्लायंस, इसको बोलते हैं हम लोग मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर। नोट कर लीजिए, आप अपने वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वेबसाइट पे MPD का एक आइकन बनाएंगे, उस पे सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। क्योंकि पहले क्या था कि लोग एक ही बार फी दे देते थे, अप्लाई करते थे, और किसी कारणवश अगर एप्लीकेशन जो फाइल रिजेक्ट होती थी तो पैसा निकालने में बहुत मशक्कत करनी होती थी। इसलिए CBSE ने 2021 में एक सरस 4.0 के थ्रू बोला कि नहीं, आपको 10,000 फी दे करके स्क्रूटनी प्रोसेस में जाना है। अगर कमेटी को लगेगा कि आपको हम एप्लीकेशन दे सकते हैं तो ओके करेगी, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपका फाइल वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा और पैसा भी आपका रिटर्न नहीं होगा। क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें पेंडेंसी में चली जाती थी और वो बहुत ज्यादा मतलब पैसे निकालने के लिए मशक्कत करने पड़ते थे, इसलिए उस बारे को कम करने के लिए। दूसरी जो थीम थी, पहले का जो एप्लीकेशन सिस्टम था और भी बहुत डिफरेंस है। पहले बिल्डिंग कहीं और का, इंफ्रा कहीं और का, टीचर्स कहीं और के, सारा लोग का एप्लीकेशन होता था। अब वैसा आप नहीं कर सकते। आपको जियो टैग लोकेशन का फोटो जो है वो, चाहे वो लैब का हो चाहे लोकेशन का हो, हर चीज को आपको ऐड कर करके और उसमें अपलोड करना है, ताकि वहां से रिव्यू कमेटी देख करके और जांच करेगी कि आपका सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। हमें चाहिए RTE, जो कि 1 से लेकर 8 तक। भी RTE जो है वो भी ऑनलाइन हो गया है ई-संवर्धन के नाम से। बहुत सारे जो पहले से होगा उनके पास, आपको ई-संवर्धन पोर्टल पे जाकर के अप्लाई करना है और उसके द्वारा DO के द्वारा जो है वो निर्गत होगा RTE। उसके बाद हम फिर अप्लाई करेंगे NOC सेक्रेटेरिएट के लिए। देन वी हैव द ट्रस्ट सर्टिफिकेट और लैंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, पिछली बार जो हुआ था, इसी बार 2023 में आप देखे होंगे सेक्शन इंक्रीज का प्रॉब्लम हुआ था ना। तो उसमें क्या कहा गया कि या तो आप 75,000 पे कीजिए और नहीं तो लैंड सर्टिफिकेट आप रिव्यूअर नया बना करके अपलोड करेंगे। तो ये सारी समस्याएं पूरे इंडिया में सिस्टम थी। तो राजस्थान और पंजाब, इन 2 स्टेट ने अपोज कर दिया कि भाई अगर आप इस तरह का पेमेंट अगर मांगेंगे 75,000 का सेक्शन के लिए तो हम पे नहीं करेंगे, हमें एप्लीकेशन नहीं चाहिए। तब वो जाकर के उन्होंने क्या किया कि पैसे को हटा दिया, लेकिन लैंड सर्टिफिकेट जो था उसको मैंडेटरी कर दिया। पहले लैंड सर्टिफिकेट जो होते थे वो 10 साल तक वैलिड होते थे, लेकिन अब क्या करना है आपको, जैसे आप हेल्थ और हाइजीनिक और फायर को हर साल अपडेट करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, वैसे ही आपको लैंड सर्टिफिकेट को भी अपडेट करना है हर साल। और लैंड सर्टिफिकेट जो बनता है कौन बनाता है? यस, कौन है लैंड सर्टिफिकेट का? बोलिए, आप लोग बनाए होंगे सर, स्कूल टीचर को पता होगा तो। कौन इशू करता है लैंड सर्टिफिकेट? रजिस्ट्रार के द्वारा जो है वो नोट कर लीजिए, चूंकि आगे आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। रजिस्ट्रार जो है वो लैंड सर्टिफिकेट इशू करते हैं
उसके बाद है बिल्डिंग सेफ्टी। बिल्डिंग सेफ्टी भी आपको अभी क्या है कि हर साल जो भी डॉक्यूमेंट्स, पहले हम लोग सिर्फ फायर और हेल्थ हाइजीनिक 2 ही डॉक्यूमेंट्स को पर ईयर रिन्यूअल करा करके अपलोड करना होता था। अभी आपको हर साल सारे सर्टिफिकेट जो यहाँ पर लिखे गए हैं, चाहे वो लैंड सर्टिफिकेट हो, बिल्डिंग सेफ्टी हो, हेल्थ एंड हाइजीनिक। अब हेल्थ और हाइजीनिक में 2 सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, एक वाटर का अलग से हो रहा है और हेल्थ हाइजीनिक का अलग। मतलब एक जो है वो पीएचसी इशू करेगा और दूसरा जो है CWRS सेंटर वर्क डिपार्टमेंट जो है, जिसमें हमको नगर निगम जहाँ पे आपका ऑफिस होगा वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर जो इसको इशू करेगी DMLT के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो होता था वो फायर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनता था, अब उसको भी चेंज कर दिया उन्होंने। आपको पहले अप्लाई करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम आएगी, आपके स्कूल में इन्वेस्टिगेट करेगी कितने आपके पास फायर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। उसके बाद वो फिर रिपोर्ट भेजेगी और पटना मतलब हेडक्वार्टर जो हमारा पटना है वहां पर निदेशक अग्निशमन वह उसको फाइनल वेरिफिकेशन के बाद फायर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिसके लिए 6,500 रुपए की करार आपको पहले जमा करनी होगी। उसके बाद आपका फायर सर्टिफिकेट वहां से इशू होगा और वो भी 1 साल का ही वैलिड होता है। नेक्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो बता दिया मैंने, इसमें 2 बनेंगे, एक बनेगा पीएचसी के द्वारा और दूसरा बनेगा CWRS सेंटर के द्वारा। क्लियर? क्योंकि अभी मैं आप लोगों से एक चार्ट वर्क कराऊंगा कि आप सपोज दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द एफिलिएशन, तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और आपको यहाँ आकर के प्रेजेंटेशन देना है और हम डिसाइड करेंगे कि आपको एफिलिएशन दे या नहीं दे, पूरा उसका ट्रायल कराएंगे यहाँ पे। ठीक है ना? इसलिए जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और जरूरत पड़े तो नोट भी कर सकते। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, मैंडेटरी कंप्लायंस। दूसरा जो पार्ट है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्लासरूम की साइज क्या होनी चाहिए, लैब्स क्या क्या होने चाहिए। अगर आप सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपोजिट लैब चाहिए, अगर सीनियर सेकेंडरी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स अलग अलग सेपरेट आपको लैब्स चाहिए, जिसकी साइज आपको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासरूम की साइज क्या होगी, कितने क्लासरूम रिक्वायरमेंट होंगे आपको फ्रेश एफिलिएशन के लिए, चाहे वो सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो। तो बताइए आप लोग क्लासरूम की साइज कितनी होनी चाहिए आइडियल, प्लीज। 500 स्क्वायर फीट। वेरी गुड आंसर। 600 स्क्वायर फीट। 500 आइडियल है सर, 600 अब लैब हो गया है, पहले थोड़ा सा ज़्यादा था अब उन्होंने कम कर दिया, 500 कर दिया है क्लासरूम, हाँ, और 600 कर दिया है लैब के लिए। और उसके अलावा लाइब्रेरी चाहिए, तो लाइब्रेरी का साइज क्या होना चाहिए, व्हाट इज द साइज ऑफ लाइब्रेरी? 900 स्क्वायर फीट। नहीं सर, 1200 1200 स्क्वायर फीट। वेरी गुड। तो लाइब्रेरी का जो साइज होना चाहिए आपका मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है कंपोजिट लैब, अगर आप सेकेंडरी का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपोजिट लैब बनाना है और सीनियर सेकेंडरी अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग बनाना है। इसके अलावा मैथमेटिक्स और SST का लैब अलग से बनाना है, म्यूजिक एंड डांस का अलग से बनाना है, स्पोर्ट्स का अलग से बनाना है, सीट रूम अलग से बनाना है। और अभी जो मैडम बनी है चेयरमैन निधि छिब्बर, उनका सबसे ज्यादा ध्यान जो है 2 ही चीजों पर है, तो बता सकते हैं कहाँ कहाँ फोकस है उनका? आप लोग चाय नहीं पसंद करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया हमें सब करवा देते हैं। तो अभी जो निधि मैम है चेयरमैन CBSE, उनका सबसे ज्यादा टारगेट है CWSN और रैंक और लिफ्ट सबसे ज्यादा। जिन स्कूलों का एप्लीकेशन हो चुका है उनको भी लेकर और जा चुका है कि आप विद इन टाइम यू मस्ट हैव टू फुलफिल द CWSN प्रॉपर मैनर एंड इंक्लूडिंग रैंप और लिफ्ट कंपल्सरी कर दिया गया है, जो हमें उसको फॉलो करना होगा। ठीक है। तो देखिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या करना है। पहला है क्लासरूम, दूसरा है लेबोरेटरी एंड IT। कंप्यूटर जो लैब होगा वो 1:20 होगा, मतलब 1 पे 20 आपको लगाना ही होगा। और कंप्यूटर लैब अगर आपका अच्छा से स्टैब्लिश है तो आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने सफल एग्जाम करवाया आपके स्कूल में? कहीं कोई भी सफल एग्जाम
आपको मैं बता दूं कि CBSE आने वाले 2 सालों के बाद, मतलब विद इन 2 और 3 इयर्स मैक्सिमम, द प्लानिंग इज गोइंग ऑन, आपका पूरा का पूरा, चाहे वो सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो, दोनों एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने जा रहा है। पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम उसके लिए वर्क चल रहा है। और उसकी टेस्टिंग आपने देखा होगा कि जिन स्कूलों के लैब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे थे, मतलब सर्वर था, नेट कनेक्टिविटी थी, उनके यहाँ उन्होंने सफल टेस्टिंग कराई, सफल का एग्जाम कराया, जिसमें ग्रेड 3, 5, 8 के बच्चों का उन्होंने लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और साइंस का टेस्ट किया। क्लियर? अब इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड में चलते हैं। ये तो हो गया 3, 5 और 8 के लिए। नेक्स्ट जो फेज है वो एडोलेसेंस, जो बच्चे 15 साल के हैं उनके लिए एक पीसा एग्जाम होता है, नोट कर लीजिए, पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, दैट इज पीसा, जो कि पूरे वर्ल्ड में 74 कंट्रीज में कंडक्ट होती है। पूरे वर्ल्ड में 74 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे कंट्री का जो रैंक है, पता है कितना रैंक है? 73, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। लेकिन दुख की बात है कि हमारा अपना जो रैंक है इंडिया का वो कितना है? 74 में 73, कितना पुअर कंडीशन, सेकेंड लास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पीसा का जो एग्जाम है वह 15 साल के जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंस बच्चे हैं, उनका लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये टोटल ऑनलाइन है पूरा। इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले 2 साल में हम पूरे अपने एग्जामिनेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लियर कर सकें। और चल रहा है। और ये जो इसके जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर ए सेंथिल कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो इस पर वर्क कर रही है। और हो सकता है कि 2026 तक, क्योंकि सेक्शन वाला उन्होंने 24 तक का टाइम दिया है, उसके बाद सारा चीज ऑनलाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है CWSN। CWSN में रैंक जो है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो बच्चे हैं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, उनको कभी भी आप दूसरे वर्ड में ना पुकारेंगे। उनके लिए एक ही वर्ड प्रधानमंत्री जी ने यूज किया, दैट इज दिव्यांग। दिव्यांग के अलावा कोई वर्ड आपको यूज नहीं करना है। तो खासकर उनके जो टॉयलेट्स होंगे वो बिल्कुल हैंडल के साथ और प्रॉपर स्पेस में होंगे। उसके अलावा लिफ्ट और रैंप कोई भी आपको एक चाहिए ही चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि अगर टीम आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एंड स्टाफ। आपके स्कूल में सेपरेट टॉयलेट गर्ल्स के अलग होने चाहिए, बॉयज के अलग होने चाहिए और स्टाफ के लिए भी अलग होने चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। टोटल जो है RO लेवल का आपको पानी का पूरा टैंक जो है आपको लगाना है, प्यूरिफाइड वाटर लगाना है पानी पीने के लिए। नेक्स्ट आपका है तीसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में पहला जो पार्ट है दैट इज प्रिंसिपल एंड टीचर्स। अभी क्या है, प्रैक्टिकल का समय आ गया है, सबके पास मेल आ चुके हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने फेक डेटा भर दिए हैं और उस स्कूल को टीचर है ही नहीं, और उसके नाम से RO साहब लेकर जारी कर दिया कि भाई आपके प्रैक्टिकल इस स्कूल में होंगे। अब जब आप कॉल कर रहे हैं तो 2 ही जवाब आ रहा है कि मैंने स्कूल छोड़ दिया है या मेरी तबीयत खराब। यही हकीकत है, अभी काम चल रहा है। तो प्रिंसिपल और टीचर आपको बिल्कुल सेपरेट। प्रिंसिपल का जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम मास्टर डिग्री प्लस BEd प्लस 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर प्रिंसिपल इन एनी एफिलिएटेड स्कूल। क्लियर हो गया? दूसरा है टीचर्स। तो टीचर्स में 3 कैटेगरी है। पहला है PGT, मास्टर डिग्री प्लस BEd। नेक्स्ट कैटेगरी है TGT, ग्रेजुएट प्लस BEd। एंड तीसरी जो कैटेगरी है वो PRT की है, दैट इज इंटरमीडिएट प्लस DLA। अब देखिएगा BPSC में पूरा हंगामा हुआ था, जो ग्रेजुएट टीचर थे उन्होंने PRT भर दिया, अब उनकी ज्वाइनिंग जो है वो रुक गई। तो अभी NCT ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हमें यही क्वालिफिकेशन चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट, आप PGT हैं तो आप PRT में नहीं जा सकते। आप PGT हैं तो आप PGT में रहिए, PGT हैं तो PGT रहिए, और PRT हैं तो PRT रहिए। अकॉर्डिंग टू NCT गाइडलाइंस आपको बना दिया गया है। ठीक है? नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, दैट इज कॉल्ड SMC। जब आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के लिए तो आपको एक कमेटी बनानी होगी, और उस कमेटी का नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें नहीं
करंट आया वो लाइन मिनिमम जो आया है वो 40 मेंबर्स होने चाहिए, 14 मेंबर कम से कम आपके एसएमसी में होनी चाहिए इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, और 2 उसमें जो मेंबर होंगे वो या तो नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे या केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे। 2 मेंबर अलग से होंगे जो आपके एनडीएस और केवीएस के प्रिंसिपल होंगे। इसके अलावा आपके पेरेंट्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे और आपकी कमेटी जो है वो रेडी होगी। मिनिमम 14 से कम आप कमेटी में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे, क्योंकि नॉलेज जो मेरे पास है मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आपके पास जो नॉलेज है सफिशिएंट है। रिसोर्स पर्सन का मतलब ये नहीं ट्रेनिंग का नहीं है, हमारे पास जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास कर, क्योंकि सुबह में जो पहला सेशन मैंने लिया सीपीडी वाला, जैसे हम लोग सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं ना एंड्रॉइड फोन, तो 1 हफ्ता चलाने के बाद कहता है सॉफ्टवेयर अपडेट नीडेड, कहता है ना। तो वैसे ही हमारे ब्रेन को भी अपडेट की जरूरत है। ये नहीं कि हमने पीएचडी सब कुछ कर लिया था मास्टर्स हो गया, हमें फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको ऑल द टाइम लर्नर बन के रहना होगा, सभी समय हमें सीखने के लिए रहना होगा, तभी जा करके हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि टीचर्स जो हैं वो 2 तरह के हैं सोसाइटी में, पहले टीचर्स बाय चॉइस और टीचर बाय चांस। जो टीचर बाय चांस है वो तो भाई टीचर है नहीं। अगर इसको सुनना है तो प्लीज इसको फीड कर जाइए, बिकॉज टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, नेवर। टीचिंग इज ओनली ए लाइबिलिटी। अगर कोई कहे कि टीचिंग प्रोफेशन है तो ये टर्म जो है प्रोफेशन नहीं है, ये लाइबिलिटी है, बिकॉज यू आर द हार्बिंजर, यू आर द क्रिएटर फॉर द सोसाइटी, फॉर द यंग। तो आपको वैसे अपने आप को ढालना होगा, अपडेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर एंड अदर स्टाफ। पहले जो था वो स्पेशल एजुकेटर पर बल दिया जाता था, आज से 2 साल पहले न मैंडेटरी था कि स्पेशल एजुकेटर चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब ये मैंडेटरी खत्म कर दिया गया। लेकिन काउंसलर का नहीं है, एक काउंसलर आपके स्कूल में चाहिए, प्रोफेशनल काउंसलर, ठीक है। अब काउंसलर की बात जब आती है तो आप देखिएगा अभी सीबीएसई का बहुत ज्यादा जुड़ है काउंसलिंग सेशन, चाहे काउंसलिंग टेक्निक हो या काउंसलिंग अप्रोचेज हो, इस 2 पे ऑनलाइन सेशन खूब चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि प्रोफेशनल काउंसलर आपके बच्चों को उतना नहीं जानता है जितना आप अपने बच्चे को जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल काउंसलर रखिए, लेकिन आपके स्कूल के टीचर भी स्कूल काउंसलर होंगे, चाहे वो मेंटी और मेंटर का प्रोसेस क्यों ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी होती, इसलिए मैंने बोला कि टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, टीचिंग इज ओनली ए लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो मैनेजर साहब हो, चाहे आपके अकाउंटेंट साहब हो या अदर नॉन टीचिंग एमटीएस स्टाफ हो, सबको इंक्लूड करके तब आप जो है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया था मैंने, 500 स्क्वायर फीट स्कूल के लिए चाहिए, आगे बढ़िए तो बता दिया। हाँ, बाल बाटिका कंसेप्ट। पहले जब हम ओएसिस भरते थे तो ग्रेड 1 से भरते थे ना, लेकिन हाँ सर लैब जो है, लैब आपने बता दिया मैंने कि अगर आपको सेकेंडरी अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ कंपोजिट लैब चाहिए, लेकिन अगर सीनियर सेकेंडरी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट लैब चाहिए, जिसका मिनिमम जो साइज है मैंने बताया था 600 स्क्वायर फीट चाहिए कम से कम, ठीक है। 1200 लाइब्रेरी, 600 लैब और 500 क्लासरूम। नेक्स्ट आगे बढ़िए, सब बता दीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है बोलिए सर, बिल्कुल। सर, ह्यूमन रिसोर्स में हाँ जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स है जी, इसमें पीजीटी में कुछ कंफ्यूजन है। बताइए। मास्टर्स और पीजीटी में क्या कैसे? मास्टर्स और पीजीटी देखिए सर, डिफरेंस है। पीजीटी में देखिए, मास्टर में आपको एमए चाहे एमएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो, प्लस बीएड हो, तब जाकर होता है वो पीजीटी। सर, कोई मास्टर्स कर लिया और बीएड किया वो ये नहीं, टाइटल नहीं, किसमें आएंगे? नहीं आएंगे, फिर नीचे तो हटा ही दिया है, इसको एनसीटी ने क्लियर कर दिया है कि आपको अगर डीएलएड है तो इंटरमीडिएट सफिशिएंट है पीआरटी के लिए। अगर आपको पीजीटी बनना है तो आपको मास्टर्स प्लस बीएड कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए। तो मास्टर डिग्री करने से मास्टर्स नहीं होंगे सर, बिल्कुल नहीं होंगे, एकदम इसको क्लियर कर लीजिए। मास्टर्स प्लस बीएड
ग्रेजुएट प्लस बीएड एंड इंटरमीडिएट प्लस डीएड, यही आपका क्राइटेरिया है। क्लियर हो गया सबको? सब तरीके हो गया। चलिए नेक्स्ट करिए, आगे करिए नेक्स्ट। चलिए आगे सबका दिया एक मिनट देखिए सरस, देखिए यही ये पोर्टल है जहाँ पे आपको फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, दैट इज सरस 4.0। जब आप गूगल में डालेंगे सरस 4.0 ही ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए सबके लिंक वहां पर आपको अपलोड करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए नेक्स्ट। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, रिव्यू ऑफ एफिलिएशन। सपोज दैट आपने अप्लाई किया और आपका फाइल जो है वो कमिटी ने रिपोर्ट सही नहीं दिया, जिसकी वजह से फाइल रिजेक्ट हो गई। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से भी रिजेक्शन आ जाती है कमिटी के गलत रिपोर्ट के नाम पे, लेकिन अगर आप सही हैं, आपका इंफ्रा सही है, आपका एचआर सही है, आपका अदर जो पॉइंट हमने बताया डॉक्यूमेंट सही है, तो देन यू कैन प्रोसीड फॉर द रिव्यू। आप एक रिव्यू ले सकते हैं, अगर गलत भी है तो कम कुछ समय लेकर के 15 डेज या 20 डेज आप अपने जो भी आपकी कंप्लायंसेस उन्होंने दिया है उसको दूर करके दोबारा रिव्यू ले सकते हैं, और रिव्यू करके दोबारा से फिर आपको जियो टैग को अपलोड करना है। और जब रिव्यू आप लेंगे तो रिव्यू में वर्चुअल इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, जब भी आप रिव्यू लेंगे तो वर्चुअल इंस्पेक्शन होगा, उसमें भी कमेटी बनेगी, लेकिन वो वर्चुअल मोड में होगा। प्रोसेस सारा होगा लेकिन सिर्फ ऑनलाइन होगा, मतलब वहीं से बैठ करके। और एक बार बता दूं आपको, ये सब जियो टैग जो बना है, एरियल व्यू जो बना है, ड्रोन कैमरा का यूज है, जिस दिन आपका ऑनलाइन मतलब वर्चुअल इंस्पेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा उस दिन 2 सीबीएसई के मेंबर तो डिप्यूट है आईटी कमेटी के रूप में, इसके अलावा जो एप्लीकेशन यूनिट सीबीएसई हेडक्वार्टर दिल्ली का है उसके 2 मेंबर ऑनलाइन मॉनिटरिंग वहीं से करते हैं, मतलब बिना आपके जानकारी के वो सारा चीज देखते होते हैं कि जो इंस्पेक्शन चल रहा है क्या रियल मोड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये एक्चुअल एक चीज को आज बारीकी से तभी ये रिव्यू कमेटी बनाई गई कि अगर ओके है तो दे देना है, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर देना, और रिजेक्ट हो गया मतलब का पूरा पैसा उठ जाएगा। एक इसमें आ गया है अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्क्वाड, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस। कितने लोगों ने भर दिया अभी तक स्क्वाड? प्रिंसिपल को पूछ रहा हूं सर मैं, स्कूल लीडर्स प्लीज बताइए कितने लोगों ने अपने भर दिया अभी तक स्क्वाड? कोई नहीं, तो आपको भर दिया सर, थैंक यू सर। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एश्योरेंस, जिन लोगों ने नहीं भरा अभी तो शायद पोर्टल बंद हो चुका है, खोलेगा तो नहीं खुलेगा, 30 तक लास्ट डेट था स्क्वा भरने का। स्क्वा जो है अगर सही से भरा जाए तो गेट से लेकर के, मैंने सार बता रहा हूँ क्योंकि स्क्वा का अलग पूरा टॉपिक ही है, उसका बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। स्क्वा जो है वो गेट से लेकर के और इंटायर कैंपस में एक एक्टिविटी का रिपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस, जिसको कि सीबीएसई ने मैंडेट किया था 30 दिसंबर तक फिल करने के लिए। इसमें क्या है कि 50 मेंटर्स चुने गए हैं स्क्वा के लिए, जिसको बोलते हैं मास्टर ट्रेनर, और सौभाग्य से उसका एक पार्ट मैं भी हूँ स्क्वा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको उस टीम के द्वारा जो भी आपने रिपोर्ट मतलब भरा है उसमें सिर्फ यस नो करना था, लेकिन यस नो सिर्फ नहीं करना है, आपके पास अगर वो चीज अवेलेबल है, क्योंकि जब टीम आएगी जांच करने के लिए तो आपके डॉक्यूमेंट भी चेक करेगी, एविडेंस देखेगी कि आपने यस किया है ठीक, तो ये चीज अवेलेबल है कि नहीं, तो आपको उसी पार्ट को यस करना है जो आपके पास है, नहीं है तो उसके लिए उन्होंने समय दिया है इम्प्रूवमेंट के रूप में, तो उसमें भी आप नो का टिक लगाएंगे, उसके अगेंस्ट में एक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म है जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जो पाइंट्स आप नहीं कर पाए हैं अभी तक समय दिया जाएगा। जो नए स्कूल हैं उनको 2 साल 20 साल का जो लेटेस्ट बता रहा हूँ रिपोर्ट, कुछ चिन्हित स्कूलों को मार्क किया गया है जहाँ पे हमारी टीम जाएगी और चेक करेगी, लेकिन जो लोग नए हैं और जिन्होंने फिल किया है, मैंने स्क्वायर फिल किया है, उनको 2 साल का समय दिया गया है कि विदिन 2 इयर्स यू हैव टू कंप्लीट द इंटायर। आपको टोटल 8 डोमेन्स हैं, 8 डोमेन्स में जो उनसे पूछा गया आपसे उस सारे को यस करके अगेंस्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स करना है। जो नहीं किए हैं अभी क्लोज है, वेबसाइट बंद है, मे भी खुलेगा क्योंकि अभी 80% स्कूलों ने
स्क्वाड नहीं भरा है और कितनों को तो स्क्वाड के बारे में पता भी नहीं है कि स्क्वाड है। यही इसलिए इंडक्शन कराया जा रहा है। इंडक्शन कराने का पर्पस यही है कि सीबीएसई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में मिले। बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल लीडर ने ट्रेनिंग में हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जो चीज कह रहा हूँ वो फैक्ट है सर। उनको अपने स्कूल का अपना ओएसिस आईडी और पासवर्ड नहीं पता, कहते हैं सर हमारा तो ऑपरेटर करता है। ऑपरेटर करता है ठीक है, लेकिन एज ए स्कूल लीडर एज ए प्रिंसिपल आपको जानना चाहिए। अब आप गए हैं इंडक्शन करने के लिए, हमने कहा कि सर अपना खोलिए पोर्टल, तो प्रिंसिपल साहब फोन कर रहे हैं भाई तुम्हारा आईडी भेजो वहाँ से पासवर्ड भेजो, ये हाल ये नहीं होनी चाहिए। एज ए स्कूल लीडर हमें सबकी जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ पहले प्रिंसिपल का था, अब टीचर को कर दिया कि टीचर भी जाने जहाँ तक, क्योंकि क्या है कि जब स्क्वाड की जो टीम बनेगी प्रिंसिपल के साथ 2 कोऑर्डिनेटर होंगे जो स्कूल के होंगे, उनको असिस्ट करेंगे पूरी फाइलिंग तैयार करने में। तो आप कब करेंगे, जब जानेंगे तो कैसे करेंगे, इसलिए ये इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया है। और आप इसको बखूबी से जितना भी चाहे वो सीबीपी हो, जेनरिक हो, स्पेसिफिक हो, पीआरपी हो, इंडक्शन हो, पर्पस यही है अपडेट का। जैसे मोबाइल को हम अपडेट करते हैं वैसे हमें दिमाग को भी अपडेट करना है। इसलिए सीपीडी चाहे वो 50 आवर, ये क्या है मैंडेटरी नहीं बांध दिया गया है, कम से कम आप उन चीज़ों पर फोकस करें। सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी नहीं है, आप कितना चीज़ 2 दिन में सीखते हैं ये मैं, और उन चीज़ों को जा करके अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करें, ये तीसरा चीज़। तो हम आशा करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं आप जरूर अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्क्वाड के बारे में बता दिया मैंने आपको, जिसका डेटेड था 24 मार्च 2023। जो नहीं किए हैं अभी, आज तो नहीं खुल रहा है, मे भी अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाला है उसको ओपन करने के लिए, शायद हो सकता है कि 3-4 तारीख तक खुल जाए। तो जो नहीं भरे हैं वो जरूर जाकर के भर लें, नहीं तो आगे आपको समस्या होने वाली है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है एसएमसी के बारे में है पॉक्सो। पॉक्सो कमेटी जो है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बच्चों के लिए, चाइल्ड गर्ल के लिए वो भी बनाई गई है, जिसकी हेड जो है वो फीमेल मेंबर उसको हेडेड करती हैं। और किसी तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो कमेटी उसको लेबल होती है, उसको आइडेंटिफाई करती है और उस पर रिपोर्ट बनाती है। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल इंक्लूजन कमेटी, चाइल्ड सेफ्टी कमेटी, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारे कमेटी आपको बनाना है एप्लीकेशन के समय, और सबका जो है डॉक्यूमेंटेशन भी फाइलिंग करनी है। ये हैंडआउट का सारा दिया हुआ देख लीजिए। अब ये कमेटी एट स्कूल लेवल क्या क्या है, पहला है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मैंने बता दिया। दूसरा है स्कूल कंप्लेंट कमेटी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, पॉक्सो एंड चाइल्ड सेफ्टी। इसके अलावा जो है आपको एक पीटीए भी बनाना है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, नोट कर लीजिए। कितने लोग के यहाँ पीटीए है? बस एक। सर पीटीए बनाइए, पीटीए का बहुत फायदा है, इसलिए जिनके यहाँ पीटीए नहीं है वो पीटीए जरूर बनाएं। नेक्स्ट है स्कूल इंक्लूजन कमेटी, जो सारे चीजों पर मॉनिटरिंग करती है। नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल करिकुलम कमेटी और स्कूल क्वालिटी स्टडीज स्क्वाड, इतने सारे कमेटी जो है स्कूल लेवल पे काम करती है। नेक्स्ट सर पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन। अब आइए स्कूल टीचर्स क्वालिफिकेशन, जो बता दिया मैंने वही है, आगे करिए। जो बताया हूँ वही एनसीटी के गाइडलाइन है। ये रहा आपका एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आपको एज ए टीम जो है पूरा का पूरा कैसे एप्लीकेशन हम लेंगे, जो चीज मैंने एक्सप्लेन किया वही आपको 4 पेपर आपको दिया जाएगा, आज नहीं कल के लिए, पहले हम खत्म कर लें, फिर कल के वर्क के रूप में देंगे आपको बना करके एज ए टीम आकर के यहाँ पर प्रेजेंट करना है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपने जो अप्लाई किया एप्लीकेशन के लिए। क्वेश्चन हमारे पास। बोलिए सर। अच्छा मान लीजिए पेरेंट टीचर बनता है, उसमें कितने अभिभावक ऐसे होते हैं जो रिजल्ट लेने के लिए नहीं आते हैं, बच्चों से संपर्क नहीं बनाते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत। 100 बार प्रिंसिपल कॉल करते हैं फिर भी वो नहीं आते हैं, मैनेजमेंट कमेटी बनाती है नहीं आते हैं। और अगर कहीं बाय द वे टीचर बॉडी टच कर दिया, किसी लड़के को मार दिया, पनिशमेंट दे दिया, तो 100 वो गार्जियन कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे को आपने क्यों मारा नहीं मारा। तो आप ये बताइए कि पेरेंट टीचर को कैसे बनाया जाएगा जब सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आते हैं, रिजल्ट सुनने नहीं आते हैं, तो बाकी काम में कैसे? बहुत बढ़िया सर, बैठिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा सर क्वेश्चन किया है, और ये हकीकत में ये बिल्कुल ये जायज है। तो आपको बता दूं सर कि अभी जो है
जैसे कैसे आपको हम पुस्तुली यहाँ बुला दिए हैं ट्रेनिंग करने के आगे है ना आप तराके में आने वाले साल मतलब इसी साल 2024 में पेरेंट्स भी आके ऐसे ही ट्रेनिंग करेंगे। इसके लिए पूरा प्रोविजन बन चुका है, सर्कुलर का इंतजार है जब वो इशू बिल्कुल आएंगे सर। जैसे आप आए हैं वैसे पेरेंट्स को भी आना पड़ेगा। इसी वजह से क्योंकि वो कलेक्शन करने के लिए नहीं आते हैं, रिपोर्ट करने नहीं आते हैं, उनके पास समय नहीं है, पीटीएम करते हैं तो आना पड़ेगा सर, आना पड़ेगा। धीरे धीरे सब पर नकली करता जा रहा है और वो भी पूरा रेडी है। इसी साल 2024 में सर्कुलर जारी हो जाएगा। देखिए जैसे आप आए हैं ना वैसे वो भी आप करेंगे। जॉबिंग है सर। लैंड रिक्वायर मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लैंड रिक्वायरमेंट जो है वह अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में है, ठीक है, तो 2 एकड़ मिनिमम चाहिए, 2 एकड़। और अगर आपका अर्बन में है तो 1.5। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों के लिए सर, मतलब 1.5 अगर आपके पास अर्बन में है तो सीनियर सेकेंडरी में आपको मिलेगा। अब मान लीजिए ये स्कूल जहाँ पर है वहाँ पूरा 2 एकड़ नहीं है और 500 मीटर की दूरी पर है, तो मान्य होगा? अभी क्या है कि उन्होंने बिल्कुल मैंडेट कर दिया है, क्योंकि जब आपका ड्रोन कैमरा आएगा ना तो एरियल व्यू ऊपर जाएगा, तो बाउंड्री चाहिए ही चाहिए। पहले चीजें होती थी वही कराने सर, अफिलिएशन लेना धीरे धीरे बहुत टफ हो गया है। जो ले लिए हैं उनके पास इतना ना वर्क हो गया है, वो परेशान है, पर डे कुछ नया सब करना है, चेंज आ रहा है, ये करना वो करना, और करना पड़ेगा सर अगर आप केस बचाना है तो। इसलिए आपका एक ही लैंड मतलब कैंपस के अंदर होना चाहिए, भले ही अलग अलग टुकड़ों में नाम हो अलग अलग, लेकिन उसको अब एक और चीज बताया देते हैं कि जो लैंड होगा वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम से नहीं होगा, ट्रस्ट अगर है भी तो उनको ट्रस्ट को स्कूल को लीज करना होगा। अगर आपके नाम से पर्सनल नाम से लोन लैंड है तो उस पर आप स्कूल नहीं खोल सकते। कितने साल का होगा? अब लीज जो है मैक्सिमम 33 इयर्स हो गया है, पहले 99 था, अब मैक्सिमम उसका जो पीरियड है वो दैट इज 33 इयर्स। चलिए तो ये हमारा एफिलिएशन सिस्टम खत्म हो गया, हम लोग इसी एक ही साथ करेंगे बाद में। एनी क्वेश्चंस इन एफिलिएशन सिस्टम? पूछिए सर, आप लोग पूछ नहीं रहे हैं एकदम। प्ले ग्राउंड लोग मतलब कंबाइंडली कर सकते हैं स्कूल प्ले ग्राउंड? नहीं कैंपस में रख सकते हैं, विदिन कैंपस बाउंड्री के अंदर। अगर कैंपस में अवेलेबल नहीं है आउटसाइड ऑफ स्कूल रख सकते हैं, लेकिन तो बिल्कुल पास ज्यादा दूरी पर नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि आपका नहीं सर एकदम सटे, बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं वो भी सर, मतलब देखिए ये डिपेंड कर रहा है, हालांकि वो लॉ बाय लॉज में लिखा नहीं है, बाय लॉज में कह रहा है कि नहीं विदिन कैंपस ही चाहिए, लेकिन कंसीडर कर दिया गया क्योंकि बहुत ऐसा होता है खासकर अर्बन एरिया में उतना लैंड नहीं हो पाता है, उस जगह पे कंसिडरेशन किया जाता है। लेकिन अगर रूरल में मैंडेटरी है, आप बगल में रख सकते हैं लेकिन वो भी बाउंड्री के साथ रखते हैं। एनी क्वेश्चन सर? एफिलिएशन में किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए तो हम सेशन 3 स्टार्ट कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सेशन